Okay, welcome back everyone. Now see, I hope you all can hear me, right? I was repeating this question once again. 9.3737 हमें करना है. तो सबसे पहले हमने 9 और 10 को एक्सागोरेट कर दिया. तो 9 और 10 के बीच में आपका आ गया 9.1 to 9.9. Now definitely your 9.3737 will be between 9.3 and 9.4. फिर मैंने 9.3 और 9.4 को एक्सागोरेट किया तो मुझे 9.31, 9.32 से लेके 9.4 तक मिला. Now 9.37 मुझे मिल गया तो my 9.373 will be between 9.37 and 9.38. 9.37 and 9.38 को मैग्नीफाई किया तो मुझे मिला 9.371, 9.372 अप टू 9.379, जिसमें मेरा होगा बिटवीन 9.373 एंड 9.374. फिर मैंने जब उसको एक्सागोरेट किया या मैग्नीफाई किया तो मुझे मिल गया 9.3737 यहाँ पे. Everyone clear with this? If it is clear, type clear. If you are having any doubt, type your doubt. Sakib is asking that, sir, I am magnified 9 and 10 in first step only. Is it okay? No, Sakib. एक ही स्टेप में नहीं होगा. एक स्टेप में नहीं होगा नव्या. ओह सॉरी साकिब, आपको करना पड़ेगा लंबा. 4 मैग्निफिकेशन चाहिए. चलो. Okay, so it is clear to you everyone, right? Now let us see next question. Next question is question number 8. हाँ साकिब, 4 मैग्निफिकेशन से तो चलेगा. हाँ. Okay, we will see about board. Yes, प्रहलाद, मैग्निफिकेशन नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में ही होगा. ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में आपको पूछा गया है फाइंड अ पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 plus √2 on number line, isn't it? Now we have to find a point which correspond to 3 plus √2 on number line. Okay, now we already know how to plot √2, isn't it? Now we have to plot 3 plus √2, so we have to use that concept only. Okay, √2 हम कैसे करते थे? Anyone raise your hand. √2 on number line. Okay, Saubhagya, you are unmuted now. Can you tell us? √2 हम कैसे प्लॉट करते थे? हाउ वी वर प्लॉटिंग √2 ओनली? तो 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का लाइन होना चाहिए और 1 से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर. ओके, सो हाँ, अगर ये 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है, तो ये मुझे मिल जाएगा √2, isn't it? यस सर. Okay, thank you. Now if I draw arc from here with center as 0, so at here I can get my point that is corresponding to √2.
So this we were doing initial students, isn't it? Now this was the case for root 2. Now what here we are requiring? We are requiring 3 plus root 2, right? Means 3 plus root 2. It was only root 2. Only root 2, that means we have started from 0. If we started from 0, we get root 2 after 0. That is nothing but the 0 plus root 2. If I take this distance is nothing but 0 plus root 2, isn't it? So what I want to say is, if I will start from 0, I'll get 0 plus root 2. If I want 3 plus root 2, I have to start it from 3. So this is my number line. This is 0, 1, 2, 3, 4, and this is 5, isn't it? Now, since this is my number line, this will be like this, like this. Now for 3 plus root 2. So for 0 plus root 2, my triangle will begin from 0. 3 plus root 2, my triangle will begin from 3. Okay. So this triangle's initial point will be from 3. This is 1 unit. This is 1 unit. This is perpendicular. This is root 2. So if I plot here, then this point will be 3 plus root 2. Is it clear, everyone? Okay. Now, suppose I want 3 minus root 2. This was the case of 3 plus root 2. अगर मुझे 3 minus root 2 चाहिए, तो पहले ये क्लियर होना चाहिए 3 plus root 2 के लिए. अगर ये क्लियर है तो ही आगे होगा. Okay. Now, so let us see your comments. So Prahlad is telling that, sir, should we start magnifying? अच्छा वो बाद वाला है. Okay. विकास, sir, should we start constructing the right angle triangle on third? हाँ वो समझा है ना विकास. प्रहलाद, sir, is 3 plus root 2 is same as 3 root 2? नहीं. This is 3 plus root 2, students. This is 3 plus root 2. And 3 into root 2, that means here we are having product, multiplication between 3 and root 2. So this both are not same. This both are different entities. 3 plus root 2 is different and 3 into root 2 is different. Now Shashank is telling that board is not clear. See, if board is not clear, don't worry. I will take screenshot of it and I will send you separately. Just listen to my voice first. Now Sakib, sir, I have did it with some another method. अगर साकिब आपने दूसरे मेथड किए तो दूसरी मेथड मुझे पर्सनली भेजें. I will check it. वास्तव, sir, how to draw root 10 or any big number? हाँ, तो root 10 और साकिब उसके सॉरी वास्तव उसके लिए हमने लास्ट टाइम मेथड सीखी ना. अगर रूट 10 या कोई भी बिग मेथड बिग नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वी विल यूज दिस, राइट? दैट इज जियोमेट्रिकल मेथड, जिसमें ये पूरा आपका डायमीटर होगा x+1, जहां से हम यहाँ पे जाएंगे x, फिर ये हमें मिलेगा रूट x. ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम देखा था. ओके, नाउ कृष्णा इज टेलिंग दैट इट इज क्लियर. मंजुनाथ, व्हाट यू आर टाइपिंग? Manjunath, if next time you are typing like this, you will be removed from group. Vaishnavi, sir, 3 plus root 2 and 3 root 2 are same. नहीं Vaishnavi, वही मैंने इधर समझाया. 3 root 2 and 3 plus root 2 both are different. Yashila is also telling, sir, I have another method. So Yashila, send me personally. Aditya P, sir, I had first plotted root 2 and then added 3 units. वो भी चलेगा आदित्य, रूट 2 करके 3 यूनिट ऐड करना भी चलेगा, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्कूल, आपकी स्कूल में जो फॉलो कर रहे हैं. मानसा, सर, आई टू हैव अनदर मेथड. ओके, जिन लोगों के पास अनदर मेथड है भेजो. तेजश्री, सर, कैन यू रिपीट? ओके, आई विल रिपीट, जबकि मैंने रिपीट कर ही दिया है. साकिब, सर, आई हैव डिड इट विद सम अनदर मेथड. हाँ, तो मैंने बोला ना साकिब. आफ्सा, sir, your voice is cracking sometimes. No problem, Afsha. I will repeat it once again. Vikas, sir, can we do like the first find out root 2 on number line and then measure root 2 and 3 arc number line? हाँ, वही तो किसी स्टूडेंट ने किया है. Now शशांक बोल रहे हैं, sir, can you explain me x+1 method? शशांक को ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझाया था. Just go through its recording. उसका रिकॉर्डिंग देखो.
हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ओके हाँ, ये ओप्पो रेनो 2F से कौन लॉगिन है? जस्ट रीनेम योरसेल्फ, योर नेम इज हियर ओप्पो रेनो 2F, ऐसा नाम नहीं चलेगा। चलो नाउ सी स्टूडेंट्स केयरफुली, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, और इसके रिस्पेक्ट में ऐसे और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। सो फर्स्ट वी हैव रिवाइज्ड हाउ वी हैव प्लॉटेड रूट 2। रूट 2 हमने कैसे प्लॉट किया था स्टूडेंट्स? तो 0 और 1 के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसका आर्क ले लिया था, तो रूट 2 हो गया था। सो दैट इज नथिंग बट द 0 + रूट 2, इजंट इट? तो अगर 0 + रूट 2 चाहिए था तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने 0 से कंस्ट्रक्ट किया। अब 3 + रूट 2 चाहिए तो राइट एंगल ट्राइंगल हम 3 से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसलिए हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां से उठा के यहाँ पे रख दिया। 3 से 4 पे कंस्ट्रक्ट किया, बेस बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। फिर वहां से आर्क लिया तो ये मुझे मिला 3 + रूट 2, इजंट इट? चलो नहीं, प्रज्वल पूछ रहे हैं सर यहाँ पे रूट एक्स वाली मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं प्रज्वल, वो वाली मेथड नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। चलो अब सपोज आपको एग्जाम में पूछा जाए 3 - रूट 2, सो हाउ यू विल प्लॉट 3 - रूट 2 स्टूडेंट्स? तो समझो यहाँ पे -√2 हम कैसे करते थे, ये -1 -2, 0 और 1 के बीच में ट्राइंगल ऐसे था, 0 और -1 के बीच में ट्राइंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट किया था हमने। फिर यहाँ पे जो मुझे मिला था वो -√2 था, isn't it? So it was nothing but it was 0 - रूट 2। अब मुझे 3 - रूट 2 चाहिए, मतलब अगर 0 - रूट 2 चाहिए तो हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ कर रहे थे। 3 - रूट 2 चाहिए तो 3 से लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे। तो 3 से लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1 यूनिट, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो मेरा हाइपोटेनियस दैट विल बी √2 यूनिट। और अगर यहां से मैं आर्क लूंगा सो माय दिस पॉइंट विल बी 3 - √2। Everyone clear with this? So 3 + √2, that means we have to move right hand side from 3. 3 - √2 means we have to move left hand side from 3. Okay. Now let me answer your questions. तो प्रज्वल का ऑलरेडी मैंने बता दिया। नव्या सर इट कम्स इन नेगेटिव पार्ट बिफोर 0। हाँ 0 से पहले वो नेगेटिव पार्ट में आ जाता है, मतलब बिफोर 0। तो यहाँ पे बिफोर 3 इट विल बी 3 - √2। वास्तव सर इफ वी आर हैविंग √11, so can we do it like by making √11 as √9 + √2? नहीं 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 नहीं। See, वास्तव is asking that sir can I write √11 as √9 + 2? नहीं, तो ये मैंने sorry, वास्तव is telling that sir can we write √11 as √9 + √2? तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था नहीं। ओके क्योंकि अगर बीच में प्लस होगा तो इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। ओके अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तभी रूट दोनों को लगता है, प्लस के लिए नहीं लगेगा। इसे क्लियर वास्तव? नाउ चंदन इज आस्किंग दैट माइनस ऑफ 3 + √2। नाउ सी चंदन इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट माइनस ऑफ 3 + √2? नाउ सी हियर एवरीवन, माइनस ऑफ 3 + √2 विल बी -3 - √2। ओके मतलब -3 के लेफ्ट हैंड साइड आपको जाना है। सो व्हाट यू विल डू चंदन, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे आप राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपको मिलेगा, ये -3 - √2। क्लियर विद दिस चंदन? नाउ दर्शन, कैन वी प्लॉट √10 ऑन नंबर लाइन और वी शुड प्लॉट √x मेथड ओनली? नहीं, √10 आप दोनों पे कर सकते हो, नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, √x पे भी कर सकते हो। बट द थिंग इज नंबर लाइन पे अगर √10 करने जाओगे तो मर जाओगे, राइट? इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, इट इज सुसाइड। समझो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब यहाँ पे आपको √2 मिल रहा है, इजंट इट? इसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस परपेंडिकुलर लोगे और यहाँ पे हाइपोटेनियस लोगे तो आपको √3 मिलेगा। इसी तरीके से वापस परपेंडिकुलर लोगे और हाइपोटेनियस लोगे तो यहाँ से √4 मिलेगा।
अब इस तरीके से वापिस परपेंडिकुलर लोगे, हाइपोटेन्यूज लोगे तो यहाँ पे √5 मिलेगा। इस तरीके से आपको जाना है √10 तक, तो ये √10 बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर वो है कि आप ये वाली मेथड यूज कर लें। ओके, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, बट दिस मेथड विल बी गुड। ओके दर्शन, नाउ so Yashash sir, √10 is easy. Yes, it is easy. Wait. Now Avyay sir, can we plot √10 by first plotting √9? हाँ, वो कर सकते हैं। Now Avyay asking that sir, √10 तो हमें पता है, हम मान लो √9 प्लॉट कर रहे हैं because we all know that √9 is equal to 3, isn't it? So if I am plotting √9 is equal to 3 and then I am plotting perpendicular 1, then this will be definitely √10. हाँ, हम वैसे कर सकते हैं अvyay, बट शायद वो अलाउ नहीं करेंगे आपको स्कूल में, बिकॉज ये वाली मेथड यहीं से फॉलो हो रही है, राइट? स्पाइरल आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। सो इफ दिस इज √9 and 1, ऑब्वियसली इट विल बी √10, बट डोंट गो बाय दिस। ओके, ये शायद आपको अलाउ नहीं करेंगे, बाकी राइट है, ये मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चंदन सर, इट विल बी अ सर्कल। चंदन क्या बोल रहे हो, कौन सा सर्कल होगा? समर सर, कैन बी कॉन्ट्रैक्ट इट ऑन 0 and 1 एंड फाइंड √2 एंड एड 3? हाँ, कर सकते हैं समर। Yashash, base is 3 and perpendicular is 1. Yes. Nitin, sir, in my method, Q can √10 easy. We can do √10 easily. Huh? Sakib, sir, in answer section, √10 is plotted on number line with an easy method. Okay. Let me see that. हाँ। आंसर सेक्शन में आपको √10 इसी मेथड से दिया गया है। ओके, सो यू कैन यूज दिस मेथड, नो इश्यू। If it is given in answer section, then it is good. Okay. Okay, then you can use this method. Next. Okay, Chandan, when we go on doing beat, Chandan, अब क्या बोल रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा। When we go on doing beat, what you are typing? Next, प्रहलाद सर, I have a method to plot √10 in number line. हाँ, वो यही मेथड है। Now, यशस, base is 3, perpendicular is 1. हाँ, कितनी बार बोलोगे यशस, हो गया। नव्या सर, I plotted √10 after √9. हाँ। Yashila, sir, we can also construct 10 to the power half by constructing a right angle triangle with side 3 and 1. तो वही तो है Yashila, वही तो है. It is not a different thing. Right, your voice is cracking. Thank you, right. Janvi, 3 minus √2 is in meter. वो यूनिट सबका सेम होगा, राइट? अगर 3 √2 वो सारी चीजें आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर, सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर, यूनिट में ले रहे हो तो यूनिट। चंदन, इट विल बी अ सर्कल व्हेन वी गो ऑन प्लॉटिंग √10. अच्छा, मतलब √10 तक जाओगे तो सर्कल हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं चंदन। ओके, हाँ, तो वो हो सकता है। नाउ प्रहलाद, ओके। हेली सर, आई कैंट सी द बोर्ड। ओके, आई विल सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ बोर्ड। ओके, सो लेट मी टेक इट्स स्क्रीनशॉट फर्स्ट। हाँ, सब कर रहे हैं। इसके बाद आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 10, राइट? तो यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज के आपके सारे डाउट खत्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ होमवर्क के कौन कौन से क्वेश्चन में है? नाउ नव्या इज टेलिंग दैट √10 अगर आप करोगे चंदन तो वो सर्कल नहीं बनेगा पूरा, राइट? नव्या ने ट्राई किया है, सो नव्या जस्ट सेंड मी दैट, राइट? आई विल सेंड टू चंदन। नाउ सी स्टूडेंट्स हियर, ये सारे बोर्ड का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, हाँ चंदन, आपने जो ट्राई किया है वो भी भेज दो। नव्या, आपने भी जो ट्राई किया है भेज दो, आई विल चेक।
होमवर्क के कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है स्टूडेंट्स? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स प्लीज. नाइन एम 1.3 homework exercise. Okay, so okay Vastav, we will see that. So question 10 2 7 10 6 भी है. Wait for that. So we are having number 2 6 7 10 8 9. So 2 6 7 8 9 10, isn't it? 2 6 7 8 9 10. Okay, now let us see that. चलो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट्स √7 एंड माइनस √5 ऑन नंबर लाइन. ओके, सो √7 एंड माइनस √5. चलो फर्स्ट √7. तो √7 हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? √7 के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा? बेस √6 होना चाहिए, राइट? √6 एंड 1. पर √6 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है. √6 के लिए बेस क्या होना चाहिए? √5. √5 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है. √5 के लिए बेस क्या होना चाहिए? √4. एंड √4 की वैल्यू क्या होती है? 2. वो हमें पता है. ओके, तो उसका यूज करके हम कर सकते हैं. समझना यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो. √7 में कब प्लॉट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल में. आई कैन प्लॉट √7 व्हेन आई नो √6, राइट? बट मुझे √6 की वैल्यू पता नहीं है. चलो, व्हेन कैन आई ड्रॉ √6? व्हेन आई नो वैल्यू ऑफ √5. क्या मुझे √5 की वैल्यू पता है? नहीं. चलो, व्हेन कैन आई ड्रॉ √5? जब मुझे √4 की वैल्यू पता हो. √4 की वैल्यू पता है 2. यस, तो मैं यहां से शुरू करूंगा. नाउ सी हाउ आई विल ड्रॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी 0 1 2. ओके, चलो अब मैं बेस ले रहा हूँ √4 जितना. 0 से शुरू कर रहा हूँ. दिस इज माई बेस. माई बेस इज √4. √4 is equal to 2, isn't it? My 0 to 2 will be my base. Base will be my √4 equal to 2. अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस परपेंडिकुलर विल बी ऑफ 1 यूनिट्स. ओके, तो ये पूरा आपका है 2 यूनिट का. बेस इज ऑफ 2 यूनिट एंड परपेंडिकुलर इज ऑफ 1 यूनिट. ओके, हाँ. मानसा इज आस्किंग दैट सर कैन वी यूज जियोमेट्रिकल मेथड? यस, जियोमेट्रिकल मेथड से आप √7 कर सकते हो, बट माइनस √5 के लिए भी फिर आपको उस तरफ जाना पड़ेगा. ज्योमेट्रिकल मेथड में हम इस तरफ आर्क लेते हैं, राइट हैंड साइड. तो माइनस √5 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला आर्क देना पड़ेगा. ओके, हाँ, यू कैन गो विद ज्योमेट्रिकल मेथड एज वेल. तो ये 2 हो गया और 1. अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, सो दिस विल बी माई √5, isn't it? अब ये मुझे √5 मिल गया. अब √5 से मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स √6. तो √5 मेरा होना चाहिए बेस और 1 होना चाहिए परपेंडिकुलर. तो अब आपके पास दो रास्ते हैं. या तो √5 पे 1 ट्रायंगल आप यहीं पे बनाओगे, ओके, या आप तो फिर उसका प्रोजेक्शन लेके करोगे. सो लेट अस टेक प्रोजेक्शन ऑफ √5. सो इफ आई टेक प्रोजेक्शन और फ्रॉम सेंटर का √5 का हो जाएगा. If this is √5, can you hear me now, students? Can you hear me now? It was just internet error. I hope now voice is clear. Okay.
Don't type yes or no in chat box, please. Type it is clear or it is cracking, like that. Okay. Now thank you students. तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पूरा समझा देता हूँ, फिर वापस रिपीट करूंगा. √5 को हम यहाँ पे लेके आए, फिर ये वाले पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. सो दिस परपेंडिकुलर विल बी आल्सो 1 यूनिट. ओके. √5 के ऊपर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो परपेंडिकुलर भी आपका 1 यूनिट को होगा. Okay. Can you hear me now, students? Okay, thank you. So √4 and 1 perpendicular, I will get √5. If I'll take projection of √5, then I'll draw perpendicular of 1. Base as √5 and perpendicular as 1, I will get hypotenuse as √6. Then if I'll draw projection of √6, my base will be of √6. If I'll draw perpendicular of 1, my base is of √6 and perpendicular 1, I will get √7 over here. And still I have to represent √7 on number line. So here your √7 will be here. So this is how we are going to plot √7 on number line. Now likewise, I have to plot √5 in negative, minus √5. So already I have done √5 for negative. I will proceed with, this will be -1, this will be -2. So -2 will be my base. 1 will be my perpendicular. Now, if I'll connect this 2 and 1, or I can say this is √4 and 1, this will be √5. And if I'll draw projection over here, it will be minus √5. Okay. So this is the answer of minus √5, and this is the answer of √7. This is the answer of √7, and this is the answer of minus √5 or number line. Okay. I am repeating it once again. First I will repeat once again whole the thing. सारी की सारी चीज मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, उसके बाद मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा सारे. ओके. सो लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ, और इस बार मैं पूरा बड़े से ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके. So suppose this is my number line. You can see this my number line. I have to plot √7. See, I hope this concept is clear to you.
root 7. To plot root 7, I want root 6 as base and perpendicular will be 1, isn't it? But I don't know value of root 6. So I cannot proceed directly because I don't know value of root 6. Now, if I have to draw root 6, my base will be of root 5 and perpendicular will be of 1. But again, I don't know value of root 5. So I have to plot root 5. For root 5, I should plot root 4 as base and 1 as perpendicular. So my root 4 will be of 2. So I can proceed with here. I can proceed with here, then I will go to this and then I will go to this. Now see how I am going to do this. So initially this is my 0, this is my 1 and this is my 2, isn't it? So my base will be root 4, that is 2. Okay, so I am drawing my base now. Suppose this is my base. So base is having value of root 4, which is equal to 2. This is my base, which is having value of root 4, which is equal to 2. Now I am drawing perpendicular over here. This perpendicular is having value 1. Now if I connect this, my hypotenuse will be of value root 5, isn't it? So this is root 5, root 4 and 1. Or let me write in some bigger numbers. So this will be root 5. Okay, so this is root 5, which is having base root 4 and perpendicular 1. Everyone clear with this? Now if I have to proceed from here, first I have to take this root 5 on number line. So if I am drawing arc over here with taking this as center from compass, this will be my radius, so this will be my arc. So this value, this point will be point corresponding to root 5. Okay, this value or this point will be the point corresponding to root 5 on number line, isn't it? Now if I want to plot root 6, I have to take root 5 as base. This will be my base. I will draw perpendicular of 1 unit once again. So this is my perpendicular, right? This is my perpendicular of 1 unit once again. Now if I am taking base as root 5 and perpendicular as 1, this will be my hypotenuse. Okay, and this my hypotenuse value will be root 6. This value will be root 6. Now I have to take this root 6 as base. All right, so again I will take over here. Okay, so this value will be corresponding to value of root 6. Is it clear, everyone? Now I will take root 6 as base and I will draw perpendicular of 1 unit. Okay, so this will be value of root 7 if I will draw hypotenuse of this. So if I will connect this point and this point, this hypotenuse will give me value of root 7 and I have to show this root 7 on number line. So I will draw this again here. So this value will be value of root 7. So everyone clear with this in root 7? Is it clear, everyone, root 7 now? Right. Just type clear or doubt in chat box. Is it clear now? Okay. So let us see your all questions. Because, okay. Sir, can you represent it in 2 different lines? हाँ चलेगा वास्तव 2 different line पे भी चलेगा, but better एक ही line पे करूँ. Yes, sir, she is asking that, sir, for root 7 I first plotted root 3 and then took perpendicular 2. वो भी चलेगा, but ऐसा मत करो. Root 3 and perpendicular 2. तो अंडर रूट 3 प्लस 4 वो भी चलेगा, नो इश्यू. ओके, बट वही आपके स्कूल टीचर मार्क्स नहीं देंगे. चलेगा. सर कैन यू प्लीज रिपीट तो मैंने पूरा कर ही दिया है. ओके, नाउ पुनीत, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग रूट 5 अगेन फॉर नेगेटिव कैन बी मेजर रूट 5 कैलकुलेटेड आइदर. हाँ वो भी कर सकते हैं कि 0 से रूट 5 यहाँ पे मेजर करके नेगेटिव साइड पे आर्क लगा दो. ठीक है, so it all depends on school. Method is right, no issue. Okay, great. So it is clear, everyone, right? Now still 1-2 questions are left. Aditya, sir, can we do this with spiral method? Yes, we can do this with spiral method also.
साकिब, हाउ टू डू इफ वी आर आस्क्ड -√7? साकिब, अगर -√7 बोला तो सारा नेगेटिव साइड पे करो, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, राइट? यहाँ पे शुरू होगा, पहले √5 आएगा, फिर इसको आर्क लोगे, यहाँ पे √6 आएगा, इसको आर्क लोगे, यहाँ पे √7 आएगा, और इस तरफ आएगा आपका, राइट? ऑल विल बी ऑन नेगेटिव साइड. So is it clear everyone? Can we conclude this question? Okay. चलो, इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट था? 6, 7, 8, 9, 10 represent root 9.3 on number line, 4.7 on number line. Okay. 0.53 बार on number line. Okay. तो ऑब्वियसली अगर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कहां से शुरू करेंगे? विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज? जियोमेट्रिकल मेथड. ओके, तो जियोमेट्रिकल मेथड आपको आनी चाहिए. जियोमेट्रिकल मेथड इज इजी, isn't it? We are having less than 1 minute. Okay. Prahlad is asking, sir, what is spiral method? Okay, I'm telling you. Wait.